السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت سے دور فرمائے، ہر خوشی عطا فرمائے۔ سب مسلمان بھائیوں کو، ہر مومن کو ہمیں کہنے سے پہلے سننے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھیا ہم آج آپ کے سامنے ایک بات بتانا چاہتے ہیں، وہ بھی نماز کے بارے میں۔ ویسے سب کو معلوم ہے نماز کے بارے میں، بہت آدمی کو معلوم ہے، عمل نہیں ہے۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ بہت سے آدمی برا مان جاتے ہیں میری بات کا، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں، بہت آدمی نے برا ماننا، لیکن بس یہ تو اللہ کو معلوم ہے، ہم بتاتے نہیں۔ اور سب سے بڑھیا چیز، سب سے بہترین چیز ہمارا دین، اور سب سے زیادہ افضل نماز وہ چیز ہے، اور اللہ نے فرمایا اور اللہ کے کتاب و حدیث میں لکھا ہے کہ نماز جو ہے نا، حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب دیکھو، اللہ نے ایک نماز کو اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا۔ وہ رسول جو اللہ تعالیٰ کے خاص نبی تھے، بہت خاص نبی، اور جن سے پیار بھی اللہ تعالیٰ بہت کرتے تھے۔ آپ ایسے ہم کلام بھی ہوئے، کوئی نہیں ہوا ہم کلام اللہ تعالیٰ سے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آمنے سامنے بیٹھ کر کے، جب آپ براق پر بیٹھ کر گئے تھے۔ اور نبیوں کے سردار بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، نبیوں کو خلیفے بنا دیے، سب سے آخر لاسٹ نبی ہے، ان کے پاس کوئی نبوت نہیں ہے، نہ آئے گی۔ امامت کری اور سب نبیوں کو پیچھے کر دیا، اور اللہ کے رسول سب سے آگے نماز پڑھائے، دو نفل نماز پڑھائے۔ نماز ہی تو پڑھائے نا، اور ہم لوگ برا مانتے ہیں نماز کے بارے میں، کسی کو نماز کو کہتے ہیں برا مان جاتے ہیں۔ نماز سب سے زیادہ افضل ہے، اور خاص کر کے فجر کی نماز۔ جب فجر کی نماز، بہت سے آدمی سوتے رہتے ہیں، 9 10 بجے تک کے سوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ ہم نے دیکھتے ہیں، ہم پتہ لگتا ہے ہمارے کو کس نے نماز نہیں پڑھی، پوچھ لیتے ہیں ہم فون پر، نماز پڑھی تھی؟ نہیں بھائی پڑھی۔ رات کو فون تو 12 بجے تک، 1 بجے تک کے دیکھ لیں گے، اور صبح کی فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے 10 منٹ کے لیے، نماز پڑھ کے سو جاؤ۔ اچھی بات ہے، ہم نے بہت سمجھانے کی کوشش کری، نہیں سمجھتے لوگ بات۔ نماز کو ہم نے کہا بھائی نماز پڑھو، اب مجھے نماز کو نہ کہا کرو، ہمارا کو نماز کو نہیں کہنا۔ کہ کیوں، کیا برا ہے نماز میں؟ گالی دی ہم نے، نماز کو کہا۔ اگر صحابہ بھی ایسا ہی کرتے، اللہ کے رسول بھی ایسا ہی کرتے، تو نماز کہاں تھی؟ ارے انہوں نے تو قربانیاں دے کر کے اس کو دین کو قائم کرا، ہمیں تو بیٹھے بٹھائے ملا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرا۔ دیکھو، قربانیاں دی انہوں نے اپنے اللہ کے رسول کے دین کے اندر، جب یعنی کہ رد و بدل ہو رہا تھا، اللہ کے رسول کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، نہیں نانا کے دین میں میرے نانا کے دین میں رد و بدل ہو رہا، میں چین سے بیٹھوں؟ نہیں، وہ بیٹھتے تو ان کو وہاں بھی مل سکتا تھا۔ کیوں گئے وہ کربلا، کیوں گئے وہ کوفہ؟ اپنے بچوں کی قربانیاں دی اس دین کی خاطر، اپنے نانا کے دین کی خاطر۔ اور جب آپ کا سر کٹا نا، تو اللہ کی بارگاہ میں کٹا، اللہ کے میں تیرے دربار میں آ رہا ہوں، تیرے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لے تیرے آگے میں نے اپنا سر دے دیا، اپنا ہی سر دے دیا اللہ کی راہ میں۔ ہم کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے۔ اس سے کہتے ہیں محبت دین کی اور نماز کی۔ ہم نماز، بس ہم بہت آدمی کو بتاتے ہیں نماز کے بارے میں، بھائی کوئی کچھ نہیں آتا ہوگا تم ہمارے سے پوچھ لو، کر ہم کان میں بتا دیں گے، سب کے سامنے بتانا اچھی بات نہیں ہے، اور بتانا بھی سب کے سامنے ایسا ہے ذرا بےزتی سی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو منع فرمایا، کسی کو کہو تو پیار سے کہو، پیار کر عمل کرو، ہدایت دینے والا اللہ ہے، اللہ دیتے ہیں ہدایت، بندے میں کوئی چاغی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔
अल्लाह हिदायत देने वाला, अल्लाह के रसूल ना, तुम नमाज को कहते रहो, एक दिन अल्लाह ताला उसको हिदायत दे देंगे नमाज पढ़ने की। और जब हिदायत देते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। जब नमाजी को पढ़ता ना तो नमाजी देखकर खुश होता है। मैंने फजर में देखा है, फजर खुश होता है, अरे यार ये नमाज पढ़ता है, अल्लाह सबको नमाजी बना दे, मस्जिद फुल रहती है। देखो फिर कैसे हमारे कोई कष्ट नहीं आएगा हमारे पर, जो ये अला बला आ रही ना, कुछ नहीं आएगा। तुम पढ़ के देखो, आजमा के देखो, कुछ भी नहीं आएगा। इसे कहते हैं अल्लाह का दीन में इतनी ताकत है। दुनिया पढ़ती है कुरान को, हम लोग नहीं पढ़ते कुरान को। हमारे मजहब का नाम क्या है, हमारी किताब का नाम क्या है? अल्लाह के रसूल का दीन का नाम है यानी कि इस्लाम, दीन इस्लाम। और उनकी किताब का नाम क्या है? कुरान, जो मोहब्बत का पैगाम है, कुरान। हमने को कहा भाई नमाज पढ़ा कर, अरे मुझे नमाज को नहीं कहना, मेरा उल्टा पुल्टा हो जाता, मैं नमाज पढ़ता। अरे हाँ क्या हुआ? हाँ नमाज को नहीं कहना। अरे भाई क्या कहा मैंने? गोली मार दी, क्या कह दिया? नमाज को नहीं कहना, उल्टा पुल्टा क्या हो गया? मुस्लिम है नहीं, मुसलमान तो है तू। अखा मुसलमान हूँ, फिर मुसलमान। अरे तू पढ़ के तो देख, कुछ भी नहीं होता नमाज से। नमाज से और बरकत होती है, नमाज पढ़ो, देखो बरकत होती है, घर काम के अंदर, कारोबार के अंदर भी खैर बरकत होती है। नमाज पढ़ो, नमाज अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत प्यारा नाम है नमाज। ईमान और नमाज, ये इस इंसान के पास होगा ना, कोई दुनिया की ताकत से झुका नहीं सकती, जिसके पास ये मजबूती से होगा। लेकिन हमारे पास कहाँ है? हमारे पास नहीं है भाई। हम तो ये कहते हैं हम भी बहुत गुनाहगार है, गुनाह करते रहते हैं, तुम झूठ बोलते हैं। तो भाई अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आप लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। तो बस हमारा कहना का यही है कि नमाज पढ़ो। जब यानी कि आदमी सोता रहता ना, नमाज नहीं पढ़ता, हमने पूछता अपने किसी आदमी से, भाई नमाज पढ़ता? नहीं यार। अरे यार 5-12 मिनट 10 मिनट की नमाज पढ़ के सो जा करो। कौन कहता? उस टाइम अल्लाह ताला रोजगार बांटते हैं, उठो मैं दे रहा हूं, लो। हम नहीं लेते, हम सोते रहते हैं। 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक हम फोन देख लेंगे, उसमें अपने टाइम अंका खराब कर देंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। गलत बात है ये बिल्कुल। और कहने को मुसलमान है, नालत है हमारे ऊपर, पढ़े और के होकर के हम जाहिल हो, हम भी हैं, हमारे तो कंफ्यूज हो जाते हैं नमाज से। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए। लेकिन हमें भाई कहने में जाना कोई शर्म महसूस नहीं होती। हम जैसा कहना कह देते हैं नमाज पढ़ा कर। नमाज किसी को माफ नहीं है, यानी कि मोहताज को माफ नहीं है। हम तो अट्टे कट्टे हैं, फिर भी हम तो अपने घर में भी बहुत ताकीद करते हैं, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। जिसके अंदर कुरान नहीं खुलेगा ना, उस पर आफत ही आफत आती रहेगी। देखते रहे, और मैं कराम फरमा रहे, अल्लाह के रसूल ने फरमा, कुरान खोल करके देखो, एक रुकू पढ़ा करो, एक रुकू पढ़ लिया करो कुरान का। अगर नहीं टाइम मिला तो एक रुकू पढ़ लिया करो, लेकिन कुरान को खोलना मेरे भाइयों। कुरान ऐसी चीज है, अल्लाह ताला ने हमें वो मुकद्दस किताब दी है जिसकी हम कदर नहीं करते। तो भाई नमाज पढ़ेंगे ना, वादा करो हमारे से इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ा करो। नमाज में सबसे ज्यादा उम्र में बरकत होती है, रोजगार में बरकत होती है, हर चीज में बरकत होती है। और चेहरा जो है ना, जब पंचगाना वजू होता है ना, नूर जैसा चेहरा होता है। इसे कहते हैं अल्लाह का दीन ऐसा है। अल्लाह को दीन भी अपने नबी का पसंद आया है। क्या कहा अल्लाह ने? खुदा को दीन कुछ ऐसा पसंद आया मोहम्मद का, कि हर दीवार दर्द पढ़ने लगे कलमा मोहम्मद का। खुदा को दीन कुछ ऐसा पसंद आया मोहम्मद का। अल्लाह ताला को दीन भी मोहम्मद का ही पसंद आया। और दीवार पढ़ने लगी कलमा, दीवार भी कलमा पढ़ लेती है, कलियां भी कलमा पढ़ती हैं अल्लाह के रसूल। और देखो जब अल्लाह के रसूल का अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अज़ान के अंदर होता है ना, तो जलता दरिया भी रुक जाता है। हम तो इंसान हैं, हम अपना फोन ही बंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फोन बंद रखेंगे ना भाई, अज़ान होती है तो फोन बंद कर रखना अच्छी बात है भाई। हमें इस इज्जत से बढ़िया अल्लाह की नजर में इज्जत होनी चाहिए हमारी। यहाँ हम कह रहे अरे मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, कुछ भी नहीं है। 100 मान 100 बरस का रखता पल की पता नहीं। बस मेरे भाइयों, हमारी आपसे गुजारिश है, अब जो कोई बुरा मान ले भाई, फोन पर कह देना मेरे को, मैं बुरा नहीं मानूंगा। फोन पर कह देना कि जो मैंने गलत बात फरमाई,
फतवा निकलवा के देख सकते हैं। अगर हम गलत होंगे तो हमारे वो फतवा लगा सकते हैं। मुनाफिक हो जाएंगे अगर हमने कोई भी इसके अंदर गलत बात फरमाई। तो हमारा जाना यही कहना है, नमाज पढ़ा करो। नमाज सबसे बड़ी चीज है। नमाज उम्र में बरकत करती है, सेहत भी देती है नमाज। इसे कहते हैं दीन, अल्लाह का दीन ऐसा है मेरे भाई। तो भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, आप जो है ना बस इस बात का ख्याल रखें, जितना भी हो सके नमाज पढ़ा करो और तिलावत कलाम में पाठ अपने घर में करा करो। शैतानियत से कम कम करा करो। शैतानियत ये जो है ना, फोन हर घर में, फोन हर घर में, बेशर्मी हद से ज्यादा हो गई, हमने देख रहे हैं अपने आंखों से। लेकिन बस अल्लाह हमारी हमें महफूज फरमावे। और अल्लाह से ऐसे भी कान पकड़े, ऐसे भी कान पकड़े, अल्लाह से तौबा करता रहे, इस्तगफार पढ़ता रहे, तो अल्लाह ताला माफ जरूर करते हैं। पढ़ेंगे ना नमाज, इंशाअल्लाह जरूर पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह की रहमत से और अल्लाह की ज़ात पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जरूर नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और हमें भी हिदायत है नमाज पढ़ने की, पंचगाना और कुरान पढ़ने की और अमल करने की। सबसे पहली चीज़ है अमल करने की तौफीक नसीब करे। अमल हमारे पास नहीं। और हाँ, एक बात और बताऊं, ये बयानबाजी वो कर सकता है जो पहले अमल करे। किसी से पूछना पड़ता, पहले अमल करो, उसके बाद जाने का बयान करो। अमल हमारे पास है नहीं और बयान कर रहे हैं, नमाज हम नहीं पढ़ रहे और बयान कर रहे हैं नमाज का, गलत बात है। पूछ लो, पहले फतवा निकलवा लो, इसका भी फतवा निकलवा लो कि मैं नमाज पढ़ते हैं दीन की बात कर रहा हूं। पहले अमल करना, जब दूसरों को सुनाना कि हाँ भाई मैं नमाज पढ़ता हूं, आप भी नमाज पढ़ा करो। ये थोड़े मैं पढ़ा हुआ सो रहा और फोन में मस्ती ले रहा और फोन देख रहा हूँ रात को, है, और दूसरों को मसले बता रहा, खुद अमल नहीं कर रहा और दूसरों को बता रहा। मसले जब बताना, जब पहले खुद अमल करना चाहिए। उससे बुरा है, कोई किसी आदमी को मेरी बात बुरी लगे तो भाई फोन करके कह देना ये बात आपकी गलत है। हम किसी को जलील या ताने-कसी नहीं करते, हम ये कहते हैं नमाज पढ़ा करो। नमाज अच्छी चीज़ है। हम नाम तो हम किसी को कहते नहीं, वैसे बस हम तो कहते हैं भाई मेरे भाइयों नमाज पढ़ा करो। नमाज में किसी आदमी का, कोई आदमी अगर किसी को नमाज को कह रहा वो अच्छी बात है, उसमें कह दिया करें इंशाअल्लाह जरूर पढ़ेंगे। बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना इसमें भाई। अगर हमारे को कोई गलती हुई तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रजा के वास्ते हमें माफ़ कर देना। बस इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। सदा खुश रहे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तब के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।